دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ دلہن بنی مرہا نے گھبرا کر سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال انکارا ہو رہی تھیں۔ اٹھو ابھی اسی وقت یہاں سے، جرت کیسے ہوئی میرے بستر کو چھونے کی بھی تمہاری؟ نہال شاہ نے مرہا شاہ کو بازو سے پکڑ کر زمین پر دھکا دیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑاتے زمین بوس ہوئی۔ ونی ہو کر آئی ہو، تمہاری جگہ اس بستر پر نہیں، یہاں نیچے زمین پر ہے، نہال شاہ کے جوتوں کی نوک پر۔ وہ بولا نہیں، پھنکارا تھا۔ وہ معصوم سی سہمی نظروں سے نہال شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک پل میں اس کو مجرم بنا کر سزا بھی سنا ڈالی تھی۔ اٹھو فوراً اور صاف کرو یہ میک اپ، زہر لگ رہی ہو تم مجھے۔ نہال شاہ اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ مرہا نے روتے ہوئے گھبرا کے فوراً اٹھتے اپنے لبوں پر لگی لپسٹک کو صاف کیا۔ اس کے لبوں پر میٹھی میٹھی لالی اور آنکھوں میں کاجل دیکھتا 3 سال کا نہال شاہ اس 20 سال کی مرہا کے حسن پر اپنے دل کو تھرکتا محسوس کرتے اس کی جانب پیش قدمی کر گیا۔ وہ ڈرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کرتے، سر نفی میں ہلاتی بے اختیار دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ کے۔ میر شاہ کی حویلی گاؤں کی مشہور ترین حویلی تھی۔ اس کے ارد گرد دور دور تک کوئی گھر یا کوئی حویلی نہیں تھی۔ شاہوں کی حویلی کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بہت پرانی ہونے کے باوجود جدید طرز کے ساز و سامان پر اپنی شہرت میں مقبولیت حاصل کر چکی تھی۔ اس حویلی کا ایک ہی جانشین تھا، نہال شاہ، جس کے قہر سے اب تک کوئی بھی بچ نہیں سکا تھا۔ اپنے علاقے کا ایک ظالم اور جابر سردار تھا، سبھی اس سے خائف رہتے۔ اس کے دادا جان میر شاہ اس پر جان چھڑکتے تھے اور اس کا کہا پتھر پر لکیر کی صورت ہوتا۔ آج بھی وہ وڈیروں چوہدریوں سے جیت کے اپنے ڈیرے پر آ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح شاہ خاندان چوہدریوں پر بھاری پڑ گئے تھے اور سرداری نہال شاہ کے حصے میں آئی تھی۔ چوہدریوں کو اس بات پہ بہت غصہ آیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نہال شاہ کو جان سے مارتے۔ صبر کر پتر، وہ وقت دور نہیں جب نہال شاہ کا سر ہم اپنے قدموں پر جھکائیں گے۔ اسفند چوہدری نے اپنے بیٹے برہان چوہدری کو تسلی دی۔ ایسے کیسے جھکے گا وہ؟ آپ کا بیٹا جھکائے گا اسے، نہیں جھکے گا تو مرے گا۔ برہان چوہدری غصے سے پاگل ہوتا نکلا تھا، جبکہ اسفند چوہدری اپنے بیٹے کو روکتا رہ گیا۔ سلطان، سلطان! اسفند چوہدری نے اپنے سب سے قریبی اور بہادر آدمی کو بلایا، جو برہان چوہدری کا سایہ تھا۔ جی چوہدری جی، برہان چوہدری کے پیچھے جاؤ اور اس کا خیال رکھو کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا دے۔ اسفند چوہدری پریشانی سے بولے تو سلطان فوراً حکم کی تعمیل کو بھاگا تھا۔ شاہوں کے ڈیرے پر نعرے گونج رہے تھے، جیت کا جشن منایا جا رہا تھا۔ نہال شاہ کی جیت کا جشن حویلی کے اندر باہر ہر جگہ منایا جا رہا تھا۔ ہوائی فائرنگ کا سلسلہ تھا کہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ ایسے میں ایک دم سے چوہدری برہان شاہوں کے ڈیرے میں داخل ہوا۔ اس کی گولی کا رخ نہال شاہ تھا، جبکہ نہال شاہ کی اس جانب پیٹھ تھی، لیکن گولی چلی۔ چوہدریوں کے آنے سے یکدم ڈیرے پر بھگدڑ مچ گئی۔ نہال شاہ فوراً مڑا تھا، پر تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ میر شاہ اس کے سامنے آتے وہ گولی خود اپنے سینے پر کھا گئے۔ ہر طرف ایک پل کو سکتہ چھا گیا، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ دادا جان! نہال شاہ کی آواز پورے ڈیرے میں گونجی تھی۔ نہال شاہ کی جگہ میر شاہ کو گولی لگی۔ اس بات سے چوہدری برہان بری طرح گھبرا گیا۔ غصے میں وہ غلط تو کر گیا تھا، لیکن اب وہ کچھ بھی سنبھال نہیں سکتا تھا۔ چوہدری جی نکلے یہاں سے، سلطان نے اسے ہوش دلاتے وہاں سے بھگایا۔ دادا جان! نہال شاہ کو لگا اس کی روح جسم سے پرواز کر رہی ہو۔ نہال شاہ، آج سے سب تمہارا، فیصلہ انصاف پہ۔ آگے وہ کچھ نہ بول سکے اور ان کی سانس رک گئی۔ نہیں دادا جان! نہال شاہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ دادا جان کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ انہوں نے اپنے پوتے سے اپنی سچی محبت ثابت کر دی۔ پوتے پر آئی موت کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ انہیں سینے سے لگائے وہ اپنی آنکھیں سختی سے بند کر گیا۔ برہان چوہدری! نہال شاہ کی آواز پورے علاقے میں گونجی تھی۔ یہ کیا کر دیا برہان نے؟ میر شاہ کو ہی مار ڈالا۔ چوہدری اسفند کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اب وہ لوگ میرے بچے کو چھوڑیں گے نہیں۔ سلطان، کچھ بھی کر کے برہان کو غائب کر دو۔ اگر برہان نہال شاہ کے ہاتھ چڑھ گیا تو وہ میرے بچے کو مار ڈالے گا۔ جاؤ سلطان، جاؤ، لے کر اسے چلے جاؤ یہاں سے۔ چوہدری اسفند کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ چوہدری جی آپ! سلطان انہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ میری فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا سب، بس برہان کو یہاں سے لے جاؤ، اسے بحفاظت کہیں بھی پہنچا دو، رابطہ مت کرنا، اب جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے اسے وہاں سے دھکیلا، جبکہ برہان اس وقت حویلی آیا ہی نہیں تھا۔ سلطان نے اسے ڈیرے پر چھوڑا تھا، ایک خفیہ جگہ۔ اسے ڈر تھا نہال شاہ بدلے میں سب سے پہلے حویلی پر ہی اٹیک کرے گا۔
اب سلطان فوراً وہاں سے نکلتا ڈیرے پر پہنچا۔ سلطان، کیا بولے بابا جان؟ کیا کہا انہوں نے؟ تم نے انہیں بتایا؟ سب بتایا نا؟ برہان اس وقت بری طرح بوکھلایا ہوا تھا۔ انہوں نے حویلی آنے سے منع کر دیا ہے۔ چھوٹے چودھری جی، آپ کو میرے ساتھ اس علاقے سے باہر نکلنا ہے، اس سے پہلے کہ نہال شاہ کے آدمی یہاں پہنچ جائیں۔ ہمیں نکلنا ہوگا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں نہیں جا سکتا سلطان، وہ بابا جان کو مجھے حکم ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ برہان نے آخری دم تک انکار کیا تو مجبوراً سلطان نے اس کے سر پر گن مارتے اسے بے ہوش کر دیا۔ معاف کیجیے گا چودھری جی، یہ ضروری تھا۔ چودھری برہان کو کندھے پر لادے سلطان وہاں سے نکل گیا۔ شاہ حویلی میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ خوشی کے موقع پر اچانک ماتم کا ماحول بن گیا۔ حویلی کے سربراہ میر شاہ کی میت اس وقت بڑے سے صحن میں آخری دیدار کے لیے لائی گئی تھی۔ نہال شاہ اعصابوں کا مضبوط جوان مرد اس وقت اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہیں روک پایا تھا۔ ماں باپ بچپن میں کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے جب وہ 5 سال کا تھا۔ اس کی دیکھ بھال اس کی پھپھو نے ہی کی تھی، جو اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ اور 2 سال کی بیٹی کے ساتھ صرف نہال شاہ کی خاطر حویلی آن بسی۔ اس کی دیکھ بھال کی، دل سے اس کو اپنا بیٹا مانا تھا، اور آج باپ کے اس دنیا سے چلے جانے پر سب سے زیادہ نہال شاہ کے دکھ میں وہی دکھی تھی۔ پتر شاہ، جنازے کا وقت ہو گیا ہے۔ شاہ بی بی نے ہارون احمد کے آ کر ان کے کان میں بولنے پر نہال کو چونکایا۔ اس وقت سب عورتیں زنان خانے میں تھیں۔ شاہ بی بی نے نہال شاہ کو بلا کر گلے سے لگایا اور جنازے کو اٹھایا۔ کلمہ شہادت ایک درد رقم تھا۔ جنازہ ادا کرتے ہی انہیں دفنایا جا رہا تھا۔ نہال شاہ خود پہ ضبط کیے ان کی قبر کی مٹی کو اپنی مٹھی میں لے گیا کہ اس کا قریبی ساتھی جھک کر اس کے کان میں کچھ بولا تھا۔ نہال شاہ مٹی میر شاہ کی قبر پر گراتا چلا گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے قاتل کو عبرت کا نشان بناؤں گا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ وہ ایک گہرا سانس خارج کرتا پرعزم انداز میں کھڑا ہوا۔ مجھے برہان چودھری چاہیے، وہ بھی زندہ۔ نہال شاہ کے آدمی پورے گاؤں میں پھیل گئے۔ ہر گلی، ہر محلے، ہر جگہ تلاشا گیا، لیکن چودھری برہان نہ ملا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اس وقت نہال شاہ اپنی حویلی کے باہر مردان خانے میں تھا۔ اسے کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ برہان چودھری بھاگ گیا تھا۔ اب ایک ہی حل تھا، جرگہ، جو کل بیٹھنا تھا۔ اس سے پہلے ہی نہال شاہ کچھ کر گزرنا چاہتا تھا۔ ہارون، نہال شاہ نے اپنے گارڈ، اپنے قریبی آدمی کو بلایا۔ جی شاہ جی۔ وہ مؤدب انداز میں وہاں آتے سر جھکا کے کھڑا ہوا۔ گاڑی نکالو، ہم ابھی چودھریوں کی حویلی جائیں گے۔ جو حکم شاہ جی۔ ہارون فوراً سر تسلیم خم کرتا باہر نکلا۔ چودھری برہان، تو نہ سہی، تیرا باپ سہی۔ نہال شاہ کا اس وقت خون کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا پورے علاقے کو آگ میں جلا کر راکھ کر دے۔ 5 گاڑیاں آگے پیچھے چودھری کی حویلی کی جانب گامزن ہوئیں۔ چودھریوں کی حویلی میں بھی یہ اطلاع پہنچ گئی تھی۔ اب کیا ہوگا چودھری جی؟ افشاں بیگم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار رکھو افشاں، تمہارے بیٹے نے ایک قتل کیا ہے۔ اب یا تو یہاں سے جنازہ اٹھے گا یا بہت بڑا طوفان آئے گا۔ کہتے ساتھ وہ مردان خانے کی جانب بڑھ گئے، جہاں اس وقت جرگے سے پہلے جرگہ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی مردان خانے میں داخل ہوئے تو انہیں شاہ نہال کے آنے کی اطلاع بھی مل گئی۔ چودھری اسفند دل بڑا کرتے ہوئے نہال شاہ کے انتظار کرنے لگے۔ نہال شاہ اور اس کے گارڈز کی گاڑیاں یکے بعد دیگرے حویلی کے احاطے میں داخل ہوئیں۔ کسی نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بھی چودھری اسفند کا حکم تھا۔ نہال شاہ اپنی مہنگی گاڑی سے اترتے ہوئے اپنے گارڈز کے ہمراہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی کے مردان خانے کی جانب بڑھ گیا۔ چہرے پر انتہا کی کرختگی، غصہ اور جنون سا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں اس وقت اس کا کھلتا سرخ و سفید رنگت اس وقت لال انگارہ ہوئی تھی۔ چوڑا سینہ، کشادہ پیشانی اور چہرے پر ہلکی بھوری بیئرڈ۔ وہ شاہوں کا اکلوتا شہزادہ اور وارث تھا۔ اس کے آتے ہی چودھری اسفند اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ نہال شاہ نے ایک قہر کی نظر چودھری اسفند پر ڈالی۔ اگر اپنی اور اس حویلی کی خیر چاہتے ہو تو مجھے بتا دو، برہان چودھری کہاں ہے؟ آسان موت دے دوں گا، ورنہ اگر میں نے خود ڈھونڈا تو ایسی موت دوں گا کہ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ نہال شاہ کا سخت لہجہ محسوس کرتے چودھری اسفند کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ میں نہیں جانتا نہال شاہ، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں، میرے بچے کو بخش دو، اس کے بدلے چاہے مجھے مار دو، میں جانتا ہوں، یا ونی لے لو۔ چودھری اسفند کے الفاظ پر نہال شاہ کا دماغ سخت گھوما۔ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟ میں یہاں کوئی سودا کرنے نہیں آیا۔ اپنا بیٹا چپ چاپ میرے حوالے کر دو، ورنہ پوری حویلی کو جہنم واصل کر دوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے نہال شاہ،
असफन चौधरी भी अब फॉर्म में आता निहाल शाह के मुकाबिल आन खड़ा हुआ। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो चौधरी असफन, अगर निहाल शाह अपनी आई पे आया तो खून की नदियां बहा देगा। तुम कुछ भी करो निहाल शाह, लेकिन मैं वही बात करूंगा, मेरी जान ले लो, मेरी बेटी को वनी कर लो। तुम निहाल शाह गुस्से से आगे बढ़ा कि यूसुफ साहब ने उसका हाथ थामे रोक दिया। बेटा शाह, कल जिरगा बैठेगा, फैसला हो जाएगा, तब तक खुद पर काबू रखें। यूसुफ शाह ने निहाल शाह के गुस्से को देखते हुए उसे काबू करना चाहा। उसने गहरा सांस खारिज करते हुए अपने अंकल की जानिब देखा। कल जिरगे में चौधरी बुरहान का सर मांगूंगा, और अगर मुझे वो ना मिला तो मैं चौधरियों की हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। निहाल शाह गुस्से से कहता अपनी शॉल को एक कंधे से दूसरे कंधे पर जोर से पटकते हुए उन्हीं कदमों पर वापस पलट गया। वो तेज तेज कदम चलते हुए बाहर की जानिब निकल रहा था कि अचानक से एक लड़की से बुरी तरह टकरा गया। इससे पहले कि वो जमीन बोस होती, बेख्तियार ही निहाल शाह उसे कमर में हाथ डाले गिरने से बचा गया था, और अपने सीने से लगाते ही उस लड़की की जानिब देखा। एक पल को निहाल शाह उस खूबसूरत दोशीजा को अपनी आंखों के सामने देख सख्त हैरान हुआ। वो भी काले लिबास में थी। उसका सोगवार हुस्न निहाल शाह को मस्मराइज कर गया। वो बेइंतहा खूबसूरत थी या बेइंतहा मासूम, निहाल समझ न सका। बाबा जान, लेकिन अगले ही लम्हे वो अपने बाप को आवाज लगा गई। निहाल शाह ने उसे झटके से परे किया। वो जो उसके सहारे खड़ी थी बुरी तरह लड़खड़ा के दीवार के साथ जा लगी। इसी असना में असफन चौधरी हाल से बाहर भागे आए। क्या हुआ मेरा बेटा, क्या हुआ? बाप की आवाज सुनती वो उस यूनानी देवताओं सा हुस्न रखने वाले मकनातीसी शख्सियत के हामिल मर्द से अपनी नीली कांच सी आंखें हटाती बाप की जानिब मुड़ी थी। बाबा जान, वो अम्मी जान, उनको देखे ना, वो घबराए हुए बोली। उसकी बात सुनते चौधरी असफन अंदर जनान खाने की जानिब भागे। मिर्हा ने देखा वो शख्स लंबे लंबे डग भरता हवेली से बाहर निकलता जा रहा था। मिर्हा वापस अंदर की जानिब भागी। उसकी वालिदा अफशा बेगम बेहोश पड़ी थी। चौधरी असफन उन्हें लिए फौरन बाहर गाड़ी की जानिब भागे। मिर्हा भी बड़ी सी शॉल लिए साथ ही थी। एक तरफ वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकले तो दूसरी तरफ निहाल शाह अपनी हवेली की तरफ। एक बार फिर नजरों का तसादुम हुआ, लेकिन इस बार निहाल उसकी सिर्फ कांच सी आंखें ही देख पाया। उसने अपना चेहरा ढांपा हुआ था। निहाल शाह ने सर झटका। अफशा बेगम का बीपी शूट कर गया था। उन्होंने किसी बात की बहुत ज्यादा टेंशन ली थी। डॉक्टर ने उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखने का कहा। बाबा जान, भैया कहाँ हैं? हॉस्पिटल से घर आते ही मिर्हा का पहला सवाल बुरहान के लिए था। असफन चौधरी की आंखों में आंसू भर आए। वो एक कत्ल करके मफरूर है। आज पहली बार चौधरी असफन का सर झुका हुआ था। निहाल शाह के दादा को मार दिया है उसने। क्या कह रहे हैं बाबा जान? भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिर्हा को यकीन ना आया। इंसान जब गुस्से में आता है तो सब कुछ भूल जाता है। बस दुआ करो कल जिरगा बैठेगा। मैंने अपना आप पेश कर दिया है, पर वो बुरहान चौधरी का सर मांग रहा है। असफन चौधरी गहरा सांस भर के रह गए। मिर्हा की आंखें आंसुओं से भर गईं। बाबा जान, और कोई तरीका नहीं कि वो पैसे ले लें और भैया को छोड़ दें? मिर्हा उनकी मासूम 19 साल की बेटी थी जो अपने भाई के लिए बेहद परेशान थी, और ये भी नहीं जानती थी कि कल वनी तक बात गई तो उसको भी नीलाम किया जा सकता है। अब सब कल ही तय होगा। वो सारी रात मुसलसल चेयर पर झूलता अपने दादा जान को याद करता रहा। उसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अपने दादा जान के संग ही गुजरा था, और वो बहुत खूबसूरत और यादगार था। उसकी जिंदगी में उसका सब कुछ उसके दादा ही थे, जिसे उस बुरहान ने छीन लिया था। वो उसे किसी सूरत माफ नहीं करना चाहता था, लेकिन आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने वो चेहरा आन समाता। मिर्हा, उसका नाम तक निहाल शाह को अजबर हो गया था। वो उम्र में काफी छोटी लगी थी, लेकिन उसका सरापा कयामत खेज था। उसका निहाल शाह के सीने से लगना कयामत ही तो बर्पा कर गया था। निहाल शाह अपनी आंखें मैच गया। वो सरापा कयामत थी। निहाल शाह का जी चाहा उसको सिर्फ वही देखे, किसी भी ना महरम की नजर उस पर ना पड़े। वो यकदम सीधा होके बैठा। इस सब का फिर एक ही हल है। निहाल शाह ने अपने लब भेंचे। वो बेचैन होता फजर की नमाज अदा करने चला गया। अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। वो इस सुकून की तलाश में अल्लाह के घर जा बैठा। वो अपने दादा के साथ बचपन से इस मस्जिद में आया करता था। ये गांव की सबसे बड़ी और वाहिद मस्जिद थी। उसका बचपन, लड़कपन, जवानी सब यहीं पर बसर हुआ। दीवार के साथ टेक लगाए वो दरूद शरीफ पढ़ता आंखें मौन चुका था कि उसे यकदम अपने पैरों पर किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ। निहाल शाह फौरन ही आंखें खोल गया। चौधरी असफन उसके पैरों में बैठे थे। निहाल ने झट से अपने पैर पीछे हटा लिए। ना जाने क्यों उसके दिल में एक दर्द सा जगा था। जो भी था वो उम्र में उससे बड़े थे। इस तरह उनका पांव छूना निहाल को शर्मिंदा कर गया। ये आप क्या कर रहे हैं?
यकलख्त वो माथे पर बल डाले बोला, मैं तुमसे अल्लाह के घर में माफी का तलबगार हूं निहाल शाह। मेरे खानदान का सिर्फ एक ही वारिस है, बुरहान। अगर वो मर गया तो मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरे बच्चे को बख्श दो। वो रोते हुए उससे हाथ जोड़े इस्तदा कर रहे थे और निहाल शाह लब भेंचे उन्हें देखता रह गया। अजीब दो राहे पर ला खड़ा किया था उसे अल्लाह ने, जहां फैसला भी उसे करना था और अपने फैसले को निभाना भी उसे था। वो दिल ही दिल में अल्लाह की तरफ से कुछ इशारा समझता उठ गया। जिरगा शुरू हो चुका था, दोनों इतराफ से बात सुनी जा रही थी। निहाल शाह बिल्कुल ही खामोश था। सब बातों को सुनने के बाद सरपंच बशीरुद्दीन साहब ने निहाल शाह की जानिब देखा। निहाल शाह, जैसे कि तुम इस गांव के सरदार हो, अपने लिए बेहतर फैसला ले सकते हो। चौधरी असफन ने खून बहा के लिए खुद को पेश कर दिया है, अब आप क्या कहते हैं? जिरगे में यकदम खामोशी छा गई। सबकी सवालिया नजरें निहाल शाह पर टिकी थी। निहाल शाह ने सामने खड़े चौधरी असफन को देखा। मुझे खून बहा में इनकी बेटी चाहिए। निहाल शाह की बात पे वहां पल भर में सन्नाटा छा गया। अगर ये बेटे को बचाना चाहते हैं तो फिर बेटी को कुर्बान करना पड़ेगा। निहाल शाह बिना झिझके बिना डरे अपनी बात सामने रख गया। चौधरी असफन का तो चेहरा लट्ठे की मानित सफेद पड़ गया। उन्हें अपनी समात पर यकीन न आया। क्या वाकई निहाल शाह ने उनकी बेटी मांग ली थी? उनके जिगर का टुकड़ा। चौधरी असफन, तुम क्या कहते हो? बशीरुद्दीन साहब ने उनकी जानिब देखा, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब देते। मेरी बच्ची छोटी है, अभी 19 साल की है, वो बालिग है। निहाल शाह एक ही रात में उसका मुकम्मल बायोडाटा निकलवा चुका था। जब ही बात काटते बोला, आपसे छोटी है। अब की बार असफन चौधरी ने बात मुकम्मल की। ये कोई वजह नहीं है। चौधरी असफन, बेहतर होगा तुम फैसला ले लो ताकि कोई खून रेजी ना हो। सरपंच के कहने पर चौधरी असफन शशोपंच में पड़ गए। क्या मुझे एक दिन की मोहलत मिल सकती है? नहीं, आपके इनकार पर आपके बेटे को मौत जरूर मिल सकती है। निहाल शाह के सख्त अल्फाज पर दिल पे पत्थर रखे असफन चौधरी ने बेटी को वनी करने का फैसला कर लिया। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और दोनों हवेलियों के जनान खाने तक भी पहुंच गई। एक सन्नाटा सा छा गया था। मिरहा का तो वो हाल था जैसे आज उसका आखिरी दिन हो और मरने से पहले उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश तक न पूछी गई हो। अफशां, बेटी को तैयार करिए, बिल्कुल दुल्हन की तरह। आज इनकी शादी है और रुखसती भी। बाप की बात सुनती वो तो खामोश आंसू बहाती बाप को देखे जा रही थी और फिर कुछ ही देर बाद उसे निहाल शाह के साथ निकाह के बंधन में बांध दिया गया और वो खामोशी से अपना आप अपने भाई और अपने बाप पर कुर्बान कर गई। निहाल शाह उसे लिए अपनी हवेली की जानिब गामजन था। वो दुल्हन बनी बड़ी सी शॉल लपेटे डरी सहमी निहाल शाह की गाड़ी में बैठी अपनी माँ की बातों को याद करती रो रही थी। बेटा, तुम पर एक आजमाइश आ गई है। अल्लाह तुम्हें इस आजमाइश पर पूरा उतरने की तौफीक दे। अपने प्यार मोहब्बत से और खिदमत से सबके दिलों को जीतने की कोशिश करना। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। गाड़ी झटके से शाह हवेली के पोर्च में रुकी थी। मिरहा का दिल धक से रह गया। निहाल शाह ने नीचे उतरते ही मुलाजमा के साथ मिरहा को अंदर भेज दिया और खुद मर्दान खाने में चला गया। इस वक्त वहां काफी लोग मौजूद थे जो बड़े शाह जी की वफात का सुनकर अफसोस करने आए थे। मिरहा इस वक्त शाह बीबी के सामने मुजरिमों की तरह खड़ी थी, जबकि शाह बीबी तो अचानक से निहाल शाह के इस फैसले को समझ ही ना पाए। दूसरी तरफ उनकी बेटी नुवैरा भागती हुई नीचे आई। निहाल शाह किसी लड़की से निकाह करके उसे हवेली ले आया था। एक गहरा दर्द वो नुवैरा को दे गया था। सामने घूंघट में लाल जोड़ा पहने वो लड़की खड़ी थी। शाह बीबी ने एक नजर अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों का कर्ब देखते वो नजरें चुरा गईं। ये सब नसीबों के खेल थे। शाह बीबी ने मिरहा से बिना कोई कलाम किए उसे निहाल शाह के कमरे में पहुंचा दिया। अम्मा, वो वनी में आई है, कमरे में क्यों जा रही है? नुवैरा ने तड़प कर पूछा। इसका फैसला खुद निहाल शाह करेंगे, तुम उनके मामलात से दूर रहो। शाह बीबी ने रखाई से जवाब दिया। अम्मा, वो तो मेरे थे। फिर वो दुख से बोली। खामोश, आवाज ना आए। कहा ना सब फैसले वो निहाल शाह खुद करेंगे। तो बात खत्म, जाओ यहां से। शाह बीबी को भी इस वक्त दुख और गुस्सा था। अगर वनी में उस लड़की को ले ही आए थे तो इतना दुल्हनों की तरह सजा संवार के लाने की क्या जरूरत थी? दुल्हन बनाकर लाए थे, मतलब उसके साथ वो अपना ताल्लुक भी जोड़ने के ख्वाहिशमंद थे। इस बात ने शाह बीबी के अंदर अंगारे भर दिए थे, जबकि नुवैरा तो जले पैर की बिल्ली की तरह वहीं कॉरिडोर में चक्कर काटने लगी। वो निहाल शाह का इंतजार कर रही थी। वो अपनी जगह इतनी आसानी से किसी को नहीं दे सकती थी। निहाल शाह रात के वापस लौटा। तब तक नुवैरा भी अपनी जगह से ना हिली। निहाल शाह के आते ही उसका रास्ता रोक लिया। इतनी संगदिली क्यों? वो तड़प कर सवाल कर रही थी। निहाल शाह के माथे पर अनगिनत बल पड़े।
रास्ते से हटो। आपने उस लड़की को मेरी जगह कैसे दे दी शाहजी? ताल्लुक तो हमारा जुड़ना था ना। वो फिर से तड़प कर सामने आई। मैं किसी को भी किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं। निहाल शाह पहले ही बहुत गुस्से में था। एक तो वो न जाने क्या सोच के वनी ले आया, ऊपर से उसे कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली अपने बड़े शाहजी का एक लड़की के एवज सौदा कराया। लेकिन वो खामोश रहा। उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता था। फिलहाल वो किसी को भी बताना नहीं चाहता था। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं मर जाऊंगी। शाहजी, आपके बिना बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। मेरी मोहब्बत को बेमौल मत करें। वो रो दी। अब तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। रास्ते से हटो नवैरा। शाहजी का लहजा अब की बार इंतहाई सख्त था। हाँ, बहुत जल्दी है ना जाने की? वो लड़की सेज सजा के जो बैठी है, जिसके साथ आज आपने अपना हर ताल्लुक, अपनी जुबान को लगाम दो। निहाल शाह वापस मुड़ते गुराया था। और दूर रहो मेरे मामूलात से। इतना कहते वो पलटा के सामने शाह बीबी को देख कर ठटका। उनकी नजरों में कुछ ऐसा था कि वो नजरें चुराता अपने कमरे की जाने बढ़ गया। नुबैरा रोते हुए वहां से भागी। शाह बीबी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। निहाल शाह के दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे। वो लड़की उसके कमरे तक कैसे रसाई हासिल कर सकती थी? वो वनी में आई लड़की को कभी भी नहीं अपनाएगा। यही सोचते वो धाड़ से दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुआ। दुल्हन बनी मिरहा ने घबराकर सर उठाकर आने वाले को देखा। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। मिरहा का दिल सूखे पत्ते की मानित लरसा। ये तो वही कल वाला शख्स है जो हवेली में आया था। तो क्या यही है वो जिसे उसको सौंपा गया था? मिरहा का पूरा जिस्म कांप उठा। उठो अभी इसी वक्त यहां से। जुर्रत कैसे हुई मेरे बिस्तर को छूने की भी तुम्हारी? निहाल शाह ने मिरहा को बाजू से पकड़कर जमीन पर धक्का दिया। वो बुरी तरह लड़खड़ाते जमीन बोस हुई। पलटकर उस शहंशाहों जैसा हुस्न रखने वाले शख्स को देखा जो खुद तो बेइंतहा खूबसूरत था, लेकिन उसका तर्ज अमल इंतहाई बदसूरत। वनी होकर आई हो। तुम्हारी जगह इस बिस्तर पर नहीं, यहां नीचे जमीन पर है। निहाल शाह के जूतों की नोक पर। वो बोला नहीं, फंकारा था। उसकी बात सुनती मिरहा का तो जैसे सांस हलक में अटक गया। वो मासूम सहमी नजरों से निहाल शाह को देख रही थी, जिसने एक पल में उसको मुजरिम बनाकर सजा भी सुना डाली थी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? कैसे बेशर्म माँ बाप हैं। बेटी को वनी कर रहे हैं और सजा संवार कर पेश कर दिया। उठो फौरन और साफ करो ये मेकअप। जहर लग रही हो तुम मुझे। निहाल शाह गुस्से और हकारत से ऊंची आवाज में धाड़ा। मिरहा ने रोते हुए घबरा के फौरन उठते अपने लबों पर लगी लिपस्टिक को अपने कामदार दुपट्टे से साफ किया, जिससे उसके नाजुक लबों को दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन वो जल्दी से साफ कर गई, क्योंकि दिल में उठते दर्द की कोई इंतहा नहीं थी। उसके लबों पर मीठी मीठी लाली और आंखों में फैलता काजल देखता 30 साल का निहाल शाह उस 19 साल की मिरहा के हुस्न पर अपने दिल को थरकता महसूस करने लगा। उसके दिल ने एकदम अपना बागीपन दिखाया। उसको पाने की शदीद तलब दिल में जागी। वो वनी होकर आई थी और वनी हुई लड़की के साथ जो चाहे मर्जी सलूक करे। निहाल शाह उसे देखते मलकियत के एहसास से रोशनास हुआ। सामने खड़ी लड़की उसकी थी। आज रात के लिए उसकी ही थी, बल्कि हर रात उसके बिस्तर की जीनत बन सकती थी अगर निहाल शाह चाहे तो। पर वो निहाल शाह था जिसके बिस्तर तक वही लड़की रसाई हासिल कर सकती थी जो उसके दिल तक पहुंच पाती। धीरे धीरे पुरसरार अंदाज में चलता उसकी जानिब पेशकदमी कर गया। वो डरते हुए अपने कदम पीछे करते सर नफी में हिलाती। बेख्तियार दोनों हाथ उसके आगे जोड़ गए। प्लीज शाहजी, हमें मारिएगा मत। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बस मारिएगा मत। वो बच्चों की तरह उसके सामने हाथ जोड़ गई। निकाह के वक्त पास बैठी औरतों ने वनी का जो नक्शा खींचा था वो बहुत बुरी तरह डर गई थी। खौफ से उसके चेहरे का रंग मजीद सफेद होता जा रहा था। उसके जुड़े हाथ देखते उसे असफन चौधरी के जुड़े हाथ याद आ गए। एक जैसा है पूरा खानदान। दर्द दे के फिर हाथ जोड़ के माफिया मांगते हो। जानती हो वो मेरे दादा जान थे जिसे तुम्हारे भाई ने सरेआम कत्ल कर दिया। वो गोली मेरे लिए थी। मुझे मारना चाहता था पर वो गोली चलाकर भाग निकला। साला भगोड़ा मर्द होता तो सामने आता। और बाप ने बेटे को बचाने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को चलाने के लिए बेटी को ही वनी कर दिया। कैसा बेगैरत खानदान है तुम्हारा। निहाल शाह के लहजे में इतना गुस्सा और हकारत देख मिरहा के लब भेंचे। झुका सर ऊपर उठा था। आप गैरतमंद खानदान से हैं ना? फिर आप भाई को ढूंढ के मौत के घाट उतार देते। एक औरत को वनी की सूरत लाके उस पर जुल्म क्यों करने लगे हैं? क्योंकि वो औरत है, कमजोर है, जो चाहे सलूक कर लूं। मिरहा का लहजा इंतहाई ठंडा ठाठ था और आवाज भी धीमी, लेकिन अल्फाज ने तीर का काम किया था।
निहाल शाह ने उसे बालों से पकड़े खींचा तो दुपट्टे में लगी पिन्ने उसके सर में पेवस्त हुई। वो तड़प कर रह गई। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे भाई को बख्श दूंगा? निहाल शाह की बात पे मिरहा ने पथराई हुई नजरों से उसे देखा। जहां भी होगा, जिस पाताल में भी छुपा होगा, ये निहाल शाह उसे ढूंढ कर कुत्ते की मौत मारेगा। वादा है मेरा खुद से। एक झटके से उसे पीछे धकेला कि वो उसके धक्का देने से बुरी तरह लड़खड़ाती। कांच की टेबल के ऊपर चाक गिरने लगी। मिरहा ने आंखें मीचे खुद को बचाना चाहा कि उसी पल निहाल शाह ने उसकी कमर में हाथ डाले, उसे वापस अपनी जानिब खींचा। वो सीधा उसके कुशादा सीने से जा लगी। धड़कनों का तालमेल एक बार फिर से गूंजा। दोनों ही की निगाहों में अजीब सा तासुर था। निहाल शाह के हाथों की गिरफ्त उसकी कमर पर सख्त से सख्त होती जा रही थी, तो मिरहा शाह के हाथों की गिरफ्त भी उसके कॉलर पर मजीद मजबूत होती जा रही थी। सारी रात नुएरा की अंगारों पर कटी। उसका दिल रह रहकर निहाल शाह की कुर्बत के लिए तड़प रहा था। वो बचपन से जवानी तक उसी के ख्वाब देखती आई थी, और अब वो उसकी दस्तरस से कैसे दूर जा सकता था। वो तड़प रही थी कि दरवाजा खुला और कोई बहुत ही दबे कदमों से अंदर दाखिल हुआ। आने वाली हस्ती को देख नुवैरा भागकर उसके सीने से लगी। वो तो मेरा था ना, फिर क्यों छिन गया मुझसे? मुझे वो वापस चाहिए, हर हाल में चाहिए, वरना नुवैरा मर जाएगी। वो उस हस्ती के गले लगी फूट फूट कर रोती। उन दो हाथों ने नुवैरा को तसल्ली दी, जैसे वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हों। आप ये क्या कह रहे हैं? आप हमारे भाई को क्यों? आप ऐसा नहीं करेंगे। वो तड़पी थी। मैं शाह हूं, निहाल शाह। मैं कुछ भी कर सकता हूं और कोई भी मेरे दिमाग तक पहुंच नहीं सकता। तुम जैसी लड़की तो बिल्कुल नहीं। वो उसे झटके से छोड़ गया था। आपने जो तकलीफ देनी है हमें दे दें, हमारे घर वालों को कुछ मत कहिएगा। वो फौरन उसके सामने आए। तुम में इतनी जान है कि मेरी दी हुई सख्त सजा सह सको? तुम्हारे जिस्म में इतनी जान ही नहीं कि तुम मेरी जरा सी शिद्दत ही सह सको? निहाल शाह उसके नाजुक सरापे को गहरी इस्तेहकाक भरी नजरों से देखते हुए बोला, हम सहते सहते मर जाएंगे लेकिन उफ तक नहीं कहेंगे। लेकिन आप हमारे घर वालों को कुछ मत कहिएगा। वो अब की बार अपने आंसू ना रोक सकी। निहाल शाह उसके सरासीमा वजूद को देखता उसकी कुर्बत के लिए अपने दिल को मचलने से रोक नहीं पाया और उसे बिस्तर पर धक्का देते अपनी कमीज के बटन खोलने लगा। मिरहा ने धड़कते दिल से उस जालिम शख्स को देखा जो एक पल में ही उसकी सजा तजवीज कर गया था। मिरहा उस शख्स की कुर्बत से अपना दिल बुरी तरह धड़कता महसूस कर रही थी। अपनी कमीज एक तरफ उछालता वो सारी लाइट्स ऑफ कर गया। मुकम्मल अंधेरे में हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मिरहा जो अंधेरे से खौफ खाती थी, लाइट ऑफ होते ही वो घबरा के हाथ पैर मारने लगी कि उसी लम्हे निहाल शाह उस पर साया फिगन हुआ। वो अपना खौफ भूलती उसकी खुशबू को अपने इतने करीब महसूस करती। इस बार अपनी सांसें ही रोक गई। शाह, सरगोशी के से अंदाज में बोलती वो निहाल को मजीद बहका गई। उसकी दोनों कलाइयों को बिस्तर के इतराफ में पिन करते वो उसकी शरबती लबों पर शिद्दत से झुका। मिरहा की सांसों का रिदम उसके सीने में बजने लगा। इस पल वो सब भूलता उसमें गुम होता चला गया। गहरी सांसों की तपिश दोनों ही एक दूसरे के चेहरे पर महसूस करते, हर पर्दे को सिरकाते चले गए। वो उसकी बीवी थी, उस पर हक था पूरा, और दुल्हन बनी वो उस पर मुकम्मल अपने हुस्न के जलवे बखेर गई थी, और अपने गुस्से में वो मिरहा से अपना हक ले गया। सुबह आंख खुली तो सर बहुत भारी भारी हो रहा था। वो उठी तो चकराकर वापस तकिए पर नीचे गिर गई। पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई तो निहाल शाह कहीं भी नहीं था। वो अपना बिखरा वजूद समेटती उठी और वॉशरूम का रुख किया। वो आईने में खुद को देखती हैरान रह गई। उसकी गर्दन पर नीले निशान थे, उसके वजूद पर भी। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसे खुद को संभालना था। उसने ये सजा अपने लिए खुद चुनी थी, अपने माँ बाप और भाई को बचाने की खातिर, और सबसे बढ़कर वो निहाल शाह के निकाह में थी, इसलिए वावेला मचाने का कोई जवाज नहीं बनता था। शावर खोले वो कपड़ों समेत उसके नीचे खड़ी थी। अपने तन पे वो निहाल शाह की शर्ट को देखते धीरे धीरे एक एक करके उसके सारे बटन खोलती चली गई और फिर उसे नीचे गिरा गई। पानी के साथ उसके आंसू भी बहते जा रहे थे। वो हिचकियों से रोते शावर लेते ही बाथरोब पहने बाहर निकली। उस लम्हे निहाल शाह कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसका ये रूप देखता वो जो अपने किसी काम के लिए वापिस आया था, उसके कदमों को जंजीर पड़ी। वो वहीं स्टिल हुआ था। वो खूबसूरत थी या उसके छूने के बाद मजीद खूबसूरत हो गई थी? निहाल शाह फैसला न कर सका। उसकी गहरी निगाहों से घबराए वो अपने गीले बालों को कानों के पीछे उड़सती कांपने लगी। नजरें झुकाए वो वहीं खड़ी रह गई। निहाल शाह गहराई सांस भरता मोबाइल पे आती कॉल को रिसीव कर गया, और जो खबर उससे सुनने को मिली वो उन्हीं कदमों पर वापस पलटा के फिर से ठटका और उसकी जानिब देखा जो छुई मुई सी खड़ी उससे ही देख रही थी। उसकी कान से आंखों की चमक मजीद बढ़ रही थी। वार्डरोब में कपड़े मौजूद हैं, वहां से ले लो।
निहाल शाह जानता था कुछ पल बाद उसकी आंखों की चमक मांद पड़ जाएगी। उसके जाते ही मिरहा ने गहरा सांस भरा और वार्डरोब की जानिब बढ़ गई। शाह हवेली में नई नवेली दुल्हन के आने की धूम मची थी। शाह बीबी उसकी मुंह दिखाई करना चाह रही थी। निहाल शाह किसी सूरत नहीं मान रहा था, लेकिन शाह बीबी के आगे उसकी एक ना चली। उनका कहना था जब उसे बीवी का दर्जा दे दिया है तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता। वो चुप सा हो गया। एक काम के सिलसिले में वो शहर चला गया। जबकि शाह बीबी ने उसे शाम को वापस हवेली पहुंचने का कहा तो वो मान गया। एक तरह उसका दिल भी मिरहा को वनी का दर्जा देने को तैयार न था। वो वाकई बहुत मासूम थी, और जो लोग दिल तक रसाई हासिल कर लेते हैं फिर वो सजा के हकदार कैसे ठहर सकते हैं। लेकिन निहाल शाह ये नहीं जानता था कि दिल में बसने वाले ही दिल को दुखाते हैं। वो जा चुका था, लेकिन पीछे एक कयामत बर्पा होने वाली थी। कैसे हो गया ये सब? हमारे चौधरी जी कैसे जा सकते हैं? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। अरमान, उनका भांजा, इस वक्त पूरी हवेली को सर पे उठाए हुए था। किसी को कुछ पता नहीं था। अचानक से चौधरी यसवंत अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए थे। कोई नहीं जानता था कि अचानक से उन्हें क्या हुआ। चौधरियों की हवेली में एक कोहराम मचा था। हर आंख अश्कबार थी, पर निहाल शाह गांव से बाहर गया हुआ था। वो नहीं जानता था कि चौधरी यसवंत का इंतकाल हो गया है, पर यह खबर मिरहा पर पहाड़ बन के टूटी। उसने हैरत से सामने खड़ी लड़की को देखा जिसने उसे ये खबर पहुंचाई थी। किस बिना पर तुमने अपना आप निहाल शाह को सौंपा? तुम्हारी कुर्बानी तो बेकार गई। उसने तुम्हारे बाप को मार दिया। अब तुम यहां बैठ के जश्न मनाओ, बल्कि आज शाम एक जश्न होने वाला है। पूरे गांव में तुम्हारी मुंह दिखाई का। सोचो, वो तो अपने सारे उल्लू सीधे कर गया, तुम्हें क्या मिला? नुवैरा ने उसे सख्त भड़काया, और वो कुछ और समझती या नहीं, लेकिन ये सब समझ रही थी कि उसका बाप चला गया है। वो बाप जिसकी आंखों में आंसू देखकर वो तड़प गई थी और अपना आप कुर्बान कर चुकी थी, अपना सब कुछ। वो हवेली के दरवाजे की जानिब बढ़ी। रुक जाओ लड़की, अगर तुमने हवेली की हद पार की तो वापसी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। नुवैरा ने उसे साफ लफ्जों में बोला तो वो अपने आंसू पोंछे वापस मुड़ी। हमारे बाबा चले गए हैं इस दुनिया से, और आप मुझे धमकी दे रही हैं कि यहां से जाओगी तो इस हवेली के दरवाजे हम पर बंद हो जाएंगे। निहाल शाह तुम्हें सजा देंगे, नुवैरा ने डराया। हमारा बस चले तो हम आपके शाह को ऐसी सजा दें कि उनकी 7 पुश्ते याद रखें। वो आंसू जब्त करते बोली, देना चाहती हो सजा? नुवैरा के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी कोई नहीं जानता था। फिर जैसा कहती हूं वैसा करो। इस सजा से बढ़कर निहाल शाह के लिए कोई सजा नहीं होगी। तुम्हारे बाप को मार के वो खुद को बहुत बड़ा 30 मारखा समझ रहा है। अगर वो तुम्हें सजा दे सकता है तो तुम क्यों नहीं? नुवैरा ने उसे अपनी बातों में ऐसा घुमाया कि मिरहा को भी यही लगा कि उसे वाकई निहाल शाह को वहां मात देनी चाहिए जहां उसे सबसे ज्यादा लगे। और नुवैरा की बात मानते बहुत खामोशी से वो हवेली से निकल गई। हवेली की बैक साइड पे आते उसने मिरहा को हवेली से निकलवा दिया। मिरहा की मदद के लिए एक नौकरानी भी उसके हमरा भेज दी ताकि वो उसे उसकी हवेली तक पहुंचा दे। उसके निकलते ही नुवैरा ने अपने हाथ झाड़े। खस कम जहां पाक। वो कमरे में आई और मिरहा के जैसा लहंगा पहनती तैयार हुई। जरतार आंचल अपने सर पर ओढ़ा तो खुद को आईने में देखती शर्मिगी मुस्कुराहट सजी। तुम जानती नहीं मिरहा तुमने क्या छोड़ दिया है। ये आम आंचल तो नहीं, ये हमारा खानदानी दुपट्टा है जो सिर्फ सरदारनी को ही मिलता है। आज जब मुझे सब इसमें देखेंगे तो सब मुझे सरदारनी समझेंगे, और फिर सरदार निहाल शाह को मुझसे निकाह करना होगा। वो दिल ही दिल में अपनी प्लानिंग से बहुत खुश थी, आने वाले वक्त से अनजान कि इस जरतार आंचल में जब कोई उसका चेहरा देखेगा तब वो इन लम्हात को महसूस करने के लिए जिंदा भी होगी या नहीं। इस सब में उसके साथ हवेली में से और कौन शामिल था, ये तो वक्त ने सामने लाना था। मिरहा जैसे ही अपनी हवेली में दाखिल हुई उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके बाबा का जनाजा ले जा चुके थे। वो माँ के गले लगी फूट फूट के रोती। उसका भाई आज भी नहीं आया था। बाप चला गया था, लेकिन वो बाप के जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ। बेटा तुम कैसे आ गई? वो शाह लोगों को पता चला तो वो जान से मार डालेंगे। उनकी इजाजत से आई हो क्या? माँ ने अभी भी उसकी फिक्र करते पूछा, जबकि शौहर की वफात ने उनको आधा कर दिया था। लेकिन बेटी का घर बर्बाद ना हो जाए, उन्हें यह भी फिक्र थी कि उनकी बेटी को सरदारनी बनाया जा रहा था। ये खबर उन तक भी पहुंच चुकी थी, और मिरहा का अकेले यहां आना उन्हें खटका था। अब हम वापस नहीं जाएंगे अम्मी जान, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारे बाबा को मारा है उन्होंने, हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मिरहा की बातें सुनती वो सख्त हैरान हुई। क्या कह रही हो? तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक आया है? किसने कहा कि उन्हें निहाल शाह ने मारा है?
माँ की बात सुनती वो उन्हीं कदमों पर खड़ी हुई। आप क्या कह रही हैं अम्मी जान? क्या बाबा को हार्ट अटैक? वो और ज्यादा रोने लगी। मिरहा, कोई गलत कदम तो नहीं उठाया तुमने? वहां से छुप के? अफशा बेगम का दिल होल उठा। अम्मी जान, हमें लगा उन्होंने हमारे बाबा को। वो हिचकियों से रोती कि तभी हवेली के बड़े गेट पर फायरिंग होने लगी। अम्मी जान, वो आ गए, वो हमें मार डालेंगे। अम्मी जान, हमें बचा लें। मिरहा ने माँ को थामे उनके पीछे छुपने की कोशिश की, जो बिल्कुल बेकार गई। आने वाले को कोई रोक सकता था भला? वो निहाल शाह की सरदारनी के रूप में घूंघट निकाले बैठी थी। कोई नहीं जानता था कि घूंघट तले कौन था, जबकि अभी वो खुद ही अपना घूंघट उलट के उस बात का खुलासा करने वाली थी कि एकदम से शोर उठा। निहाल शाह हवेली वापस लौट आया था। वो डर के मारे अपनी जगह से उठी थी कि उसी वक्त एक गोली चली, जो सीधा घूंघट में लिपटी दुल्हन को चीरती गुजरी। एक पल को वहां सन्नाटा छा गया। निहाल शाह के कदम वहीं थम गए। उसे लगा जैसे उसका दिल किसी ने सीने से निकालकर कुचल दिया हो। अगले ही पल दुल्हन जमीन बोस हुई। हर तरफ खून ही खून फैलने लगा। शाह बीबी दहलते दिल के साथ उसकी जानिब बढ़ी और फट से उसका घूंघट उल्टा। निहाल शाह, जो अपने कदमों में सकत पैदा न कर सका, घूंघट उलटते ही मिरहा की जगह नुवैरा को देख वो अपना रुका हुआ सांस बहाल कर गया। मतलब वो नहीं थी। आगे बढ़ा, जहां शाह बीबी अपनी बेटी का सर गोद में लिए बुरी तरह रो रही थी। हाय मेरी बच्ची की किस्मत, कैसा नसीब है। पहले वो लड़की इसका नसीब खा गई, आज उसके हिस्से की गोली भी खा ली मेरी बच्ची ने। हाय, वो होती तो मर जाती, मेरी बच्ची तो जिंदा रहती। शाह बीबी के अल्फाज ने निहाल शाह को गंग कर दिया। वो सोच भी नहीं सकता था कि शाह बीबी ऐसा भी कुछ सोच सकती हैं। शाह बीबी ने बैंड डाले, पर निहाल शाह ने लब भेजे। उन्हें देखा था, उनकी कही बात निहाल शाह के दिमाग में क्लिक हुई। गोली दुल्हन के लिए थी, मतलब मिरहा के लिए, और मिरहा की जान को अभी भी खतरा था। वो सख्ती से आंखें मैच गया। शाह बीबी, ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ है। जो कोई दूसरे के लिए गड़ा खोता है, खुद उसमें जा गिरता है। आप और आपकी बेटी का यही हाल होना था। उसने हवेली की दुल्हन की जगह लेनी चाहिए। देखें अल्लाह ने कैसा सबक दिया। जिरगे के सरपंच की बीवी यहां मौजूद थी और घूंघट में मिरहा की जगह किसी और को देख वो भी मामला बखूबी समझ गई थी। वो तो किसी की जुर्रत ना हुई कि कोई कुछ बोल सकता, लेकिन गजाला बीबी को कोई चुप नहीं करवा सकता था। उनके सख्त तरीन अल्फाज पे शाह बीबी अपने लब एक दूसरे में पेवस्त किए। उन्हें देखे गई। बड़ी बीबी, इनका दुख तो देखें, इनकी जवान बेटी इस दुनिया से चली गई, इनके दुख का तो कोई मदावा ही नहीं। एक और मोअज़्ज़ज़ खातून ने कहा तो बड़ी बीबी के माथे पर अनगिनत बल पड़े। निहाल शाह अपने कदम पीछे ले जा चुका था। इस वक्त सब जनान खाने में औरतें इकट्ठी हो चुकी थीं, जबकि निहाल शाह हवेली का चप्पा चप्पा तलाश कर रहा था कि मिरहा को नुवैरा ने कहाँ कैद किया था। और अब उस पर एक और हकीकत आशिकार हुई कि मिरहा हवेली से भाग गई है। उसके दिमाग में तो झक्कड़ चलने लगे। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हवेली की दहलीज पार करो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो हवेली आया था उसको लेने की उसके बाप की फौदगी पर ले जा सके, लेकिन आगे मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी, जिस पर वो वहीं थम गया था। पर गोली के चलने पर वो अपने कदम रोक ना पाया। और अब ये जान कर कि मिरहा तो हवेली से भाग गई है, अब उसे सख्त सजा देने का इरादा रखता था। मुअज़्ज़ज़ खातून शाह बीबी की बात पर फिर से बीच में दखल अंदाजी कर गई। जी बजा फरमाया आपने। आपके ख्याल में बेटी का चला जाना किसे कहते हैं? वो दुखी लहजे में पूछ बैठी, जबकि वहां मौजूद औरतों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आज पहली बार शाह बीबी के मुकाबिल कोई औरत खड़ी हुई थी, वो जो सरपंच की बीवी थी, सबकी सरदारनी। शाह बीबी सिर्फ बेटी का इस दुनिया से चले जाना, मनोमट्टी तले दफन हो जाना ही उसकी मौत नहीं। जब बेटियों को वनी कर दो तब भी वो मर जाती हैं, और इस दुख का एहसास सिर्फ उसी को होता है जिस पर बीती हो। वो दुख और गुस्से से बोलती बाहर से गुजरते निहाल शाह को भी आज आईना दिखा गई थी। उनकी बात सुनता वो वहां रुक ना पाया। वो जैसे ही चौधरियों की हवेली में दाखिल हुआ, हवाई फायरिंग से आगे बढ़ा, सीधा जनान खाने की जानिब बढ़ गया था। सब खवातीन वहां से हट गईं। अफशा बेगम नकाब कर गईं। मैं यहां लड़ने या कोई भी लाशें गिराने नहीं आया, सिर्फ अपनी बीवी को लेने आया हूं। उम्मीद करता हूं आप मेरी राह में रुकावट नहीं बनेगी। निहाल शाह के सर्द लहजे पर अफशा बेगम ने आंसू पोंछते अपने पीछे छुपी मिरहा को सामने किया। वो हिरनी सी सहमी आंखों से निहाल शाह को देखती लरसने लगी। निहाल शाह ने लब भेंचे उसे देखा। कुछ देर पहले वो नवेरा को खून में लथपथ देख कर आया था, और इस पल उसके दिल ने बेख्तियार शुक्र अदा किया था कि इस वक्त वो वहां नहीं थी। पर अब उसकी कलाई सख्ती से थामे वो बाहर निकलता बेइंतहा गुस्से में था। प्लीज शाह जी, हमारी बात तो सुने। हमने
निहाल शाह उसे घसीटते हुए गाड़ी में ले जाते जोर से पटक गया और गाड़ी स्टार्ट की। उसके माथे पर बलों का जाल था। शाह कुछ देर बाद फिर से डरते डरते पुकारा। चुप! वो धाड़ा, बिना उसकी जानिब देखे कि वो गाड़ी के दरवाजे के साथ जा चिपकी। आंसू भल भल आंखों से बह निकले। इतना सख्त तो रात को भी नहीं डांटा था, लेकिन अभी वो बिल्कुल कोई अलग ही शख्स लग रहा था। रोना बंद करो, वरना गाड़ी किसी भी जगह दे मारूंगा, फिर रोती रहना, खुद को भी और मुझे भी। वो इतना शदीद गुस्से में बोला था कि मिरहा ने फौरन सांस रोके उसे देखा, जिसके चेहरे पर जरा भी नरमी का तासुर नहीं था। मुझे बाबा की कब्र पर जाना है, धीरे से सहमे हुए अंदाज में निहाल को कहते वो उसे देखने लगी। निहाल ने लब भेंचे, लेकिन खामोश रहा। शाहजी प्लीज, वो तड़पी थी। बंद करो अपनी बकवास, वरना बाप की कब्र के पास ही कब्र खोद के दफना दूंगा। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि वो फिर से पीछे हुई। आप बहुत बुरे हैं। निहाल की गुस्से भरी धाड़ सुनती मिरहा खुद पे जब्त करती आंसू रोकती कर्ब से बोली थी और विंडो से बाहर की जानिब रुख कर गई। अब मेरी जिंदगी में इस अच्छे और बुरे का कोई सीन नहीं। तुम मुझे अच्छा समझो या बुरा, सरदार निहाल शाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्द लहजे में कहता वो मिरहा को 1 मिनट में उसकी औकात याद दिला गया। हवेली के अंदर दाखिल होते वो उसे सीधा तहखाने में ले गया, जिस पर मिरहा ने उसे बेयकीनी से देखा। आप हमें कैसे यहाँ? शाहजी, हमें यहाँ नहीं रहना, यहाँ अंधेरा है, हम मर जाएंगे। हमें अंधेरे से डर लगता है। आप हमें कोई भी सजा दे दें, लेकिन बस बहुत हो गया। तुम्हें इज्जत दी, मान दिया। तुम्हें शाह बीबी इतना बड़ा मर्तबा देने जा रही थी, तुमने क्या किया? हवेली से ही भाग गई। अब रहोगी यहाँ कैद खाने में बंद तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और दोबारा हवेली से भागने की जुर्रत नहीं करोगी। शाहजी, आप हमें छू लें, हम पर अपनी शिद्दतें निछावर कर दें, जिस तरह चाहें हम पर बरस जाएं, लेकिन बस हमें यहाँ कैद ना करें। वो उससे क्या कह रही थी? वो उसे नफ्स का गुलाम समझ रही थी। अपना जिस्म देकर वो उससे इस कैद खाने से निकालने का बोल रही थी। निहाल ने उसे बालों से थामे उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। तुम इस कदर घटिया और गंदी बात करोगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। लड़की तो अपनी निस्वानियत की हिफाजत के लिए जान दे देती है और तुम मुझे खुद को प्लेट में सजाकर पेश कर रही हो। निहाल शाह के सख्त तरीन अल्फाज पर मिरहा ने रोते हुए अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। हम आपकी बीवी हैं, आपका हक है हम पर, और आज आप अपना हक ले भी चुके हैं। आप अब भी ले लें, लेकिन हमें यहां से निकाल दें प्लीज। वो सिसकते हुए हाथ जोड़ गई। मिरहा की बात पर निहाल ने लब भेंचे उसे पीछे धकेला और गुस्से से दरवाजा बंद कर गया। मिरहा ने बमुश्किल उठते दीवार का सहारा लिया और एक तरफ को होकर रोते हुए बैठती वो आंखें मूंद गई। हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छा गया और अंधेरे से उसकी जान जाती थी। उसका सिसकना अभी भी जारी था। निहाल शाह, आपसे मुझे मोहब्बत तो नहीं हुई, लेकिन आज शदीद नफरत हो रही है। लेकिन आप हमारी नफरत के काबिल भी नहीं, कभी माफ नहीं करेंगे आपको। आंसू जब्त करती इस वक्त वो होशो हवास भी खो रही थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब एक गनूदगी सी थी जो छा रही थी। बहुत कोशिश की हवास कायम रखने की, लेकिन नकाहत और कमजोरी ने उसके होशो हवास सलब कर लिए और वो अगले ही पल जमीन पर गिरती बेहोश हो गई। शाह, वो बहुत मासूम है, उसको इस कदर सख्त सजा मत दो, वो नहीं सहन कर पाएगी। दिल ने 100 तावीलें दी, लेकिन वो दिल की सुन ही कब रहा था। उसका तो बस दिमाग ही था जो इस वक्त चले जा रहा था और बस यही कह रहा था कि उसे सजा देनी चाहिए ताकि वो अगली बार हवेली से कभी न भाग सके। आज उसने हवेली से भागकर उसका सर झुका दिया था। नुवैरा का जनाजा हो गया। हवेली में एक सोगवारी की सी कैफियत छा गई। जवान जहान बेटी का जनाजा उठा था। शाह बीबी का रो रो के बुरा हाल था। वो उस वक्त को रो रही थी जब उन्होंने नुवैरा की बात मानते उसे मिरहा की जगह बिठा दिया। अब वो रोती थी, सिसकती थी। उस वक्त वो बेटी की मोहब्बत में अंधी हो गई थी कि समझ ही ना सकी कि कितनी बड़ी गलती कर चुकी हैं। शाह बीबी, अचानक से निहाल शाह की आवाज पर वो चौंकी। शाह बीबी, खाना खा लें। निहाल शाह उनके आगे खाना रखता धीमे लहजे में बोला। नहीं निहाल, मैं बहुत बुरी हूं, अपनी बेटी को ही खा गई। मैं उस लड़की पर इल्जाम लगा रही थी, जबकि अपनी बेटी की कातिल मैं खुद हूं। वो मेरी वजह से चली गई। दुल्हन को इस हवेली से भगाने की सारी प्लानिंग हमारी थी। निहाल शाह उनकी बात सुनता बेयकीनी से उन्हें देखने लगा और उसकी जगह नुवैरा घूंघट ओढ़े बैठ गई। और हमारे यहाँ तो यही रीत है ना, खानदान जरतार आंचल उसी के ऊपर डालता है जो सरदारनी बनती है। वो मिरहा को मिलने वाला था, बनी में आई उस लड़की को। मुझसे ये बर्दाश्त ना हुआ, ना ही नुवैरा से, इसलिए ये सब किया। बेटा निहाल, हो सके तो अपनी फुप्पो को माफ कर देना। वो उसके आगे अपने कमजोर नातवा हाथ जोड़ गई, उसके हाथों पे अपने मजबूत हाथ रख गई। वो उनको अपने सीने से लगा गया। बस रोए नहीं, भूल जाएं सब।
आपका शाह हमेशा आपके साथ है। आप मेरी माँ हैं और माएँ माफ़ी नहीं मांगती। वो उन्हें फिर से मान दे गया। निहाल शाह ने कैद खाने का दरवाज़ा खोला। इर्द गिर्द देखा तो वो ज़मीन बोस नजर आई। निहाल शाह ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भरा और हवेली के अंदरूनी हिस्सा में ले आया। अपने कमरे में लाता वो उस पर पानी के छींटे मारते उसे होश दिलाने लगा, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। उसकी सांसें चेक की, लेकिन वो बहुत मध्यम चल रही थी। मेरा प्लीज होश में आओ यार। वो उसके लिए यकदम ही परेशान हुआ। वो उसके लिए क्या मायने रखती थी, एक रात में ही उसे एहसास हो गया था। और उसे हवेली से भगाने की साजिश भी नुवैरा और शाह बीबी की थी। ये सब जानने के बाद वो कैसे उसे कैद खाने में रखता। अचानक से निहाल शाह को अपना सख्त अमल बुरा लगा था। आज उसके बाप की डेथ हुई थी और आज ही उसके साथ निहाल ने इतना सख्त रवैया रखा। शाह। नीम बेहोशी में वो उसे पुकार रही थी। मिरहा। उसका सर ऊपर को उठाता अपने सीने से लगाते उसके माथे पर लब रख गया। हमें अंधेरे से डर लगता है, वो धीरे से बोलती उसके दिल को चीर रही थी। नहीं छोड़ूंगा अंधेरे में, कभी नहीं छोड़ूंगा। वो उसे अपने सीने में भेंच गया। कोई इस वक्त देखता सरदार निहाल शाह को इस कदर अपनी बीवी के लिए जनूनी होता तो यकीन न कर पाता। हमें बाबा के पास जाना है, वो हिचकियों से बोली थी। कल सुबह ले जाऊंगा उनकी कब्र पर। बस तुम अब टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक कर दूंगा। निहाल शाह ने उसे बिस्तर पर लिटाते मुलाजमा से उसके लिए सूप मंगवाया। उसकी खस्ता हालत देख वो समझ गया था कि उसने काफी वक्त से कुछ नहीं खाया। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठती शाह को देखने लगी, जो कुछ पल में कितना बदल गया था। इतना नर्म खो। मुलाजमा सूप देकर चली गई तो उसे खुद पिलाने लगा। हम पी लेंगे, मिरहा उसके इतने नर्म रवैये पर डरते हुए बोली। उसे डर था कहीं वो फिर से उसे कुछ बुरा भला ना कह दे। नहीं, मैं खुद पिलाऊंगा। वो उसे एक एक स्पून करके पिलाता, बहुत चुपचाप था। सूप फिनिश करता वो बाउल एक तरफ रखता उसे देखने लगा। तुम आराम करो, सुबह बात करेंगे। वो निहायत संजीदगी से कहता उठा कि मिरहा ने उसका हाथ थाम लिया। हम बनी में आई लड़की आपके बाबा के कातिल की बहन, हवेली से भागी, आपका सर झुका दिया। हमसे इतनी हमदर्दी क्यों है शाहजी? हमें तो डर लगने लगा है। वो अपनी नीली आंखों से उसे देखती कांटों पर घसीट गई। नुवैरा की डेथ हो गई है। अचानक ही उसकी कही बात पर मिरहा का जैसे सांस रुकने लगा। कैसे? उसे समझ ना आया। गोली लगी थी उसे, तुम्हारी जगह। और जानती हो गोली चलाने वाला कौन था? निहाल शाह ने अपनी जगह से उठते हुए उससे पूछा। वो आंखों में आंसू लिए सवालिया नजरों से उसे देखे गई। तुम्हारा भाई बुरहान शाह, उसने तुम पर गोली चलाई, लेकिन घूंघट में नुवैरा थी जो तुम्हें भगाकर खुद तुम्हारी जगह बैठ गए। निहाल शाह के इंकशाफ पर मिरहा का दिल धक से रह गया। आप ये क्या बोल रहे हैं? भैया ऐसा कैसा कर सकते हैं? वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर प्यार करता होता तो भागता नहीं। जिस दिन वनी किया गया तुम्हें वो आता, खुद सजा लेता, ना कि तुम्हें वनी की भेंट चढ़ाता। निहाल शाह का लहजा सख्त हुआ। अगर इतना ही उसे एहसास होता तो अपने बाप के जनाजे में शरीक होता। आखिरी अल्फाज कहते निहाल शाह के लहजे में अफसोस था। मिरहा ने एक हिचकी भरी थी। भैया ने क्यों चलाई हम पर गोली? वो अभी भी समझ ना पाई। जब चौधरियों की इज्जत को शाह हवेली में इज्जत मिलने लगी तो वो उससे बर्दाश्त ना हुआ और उसने अपनी असलियत दिखा दी। वो दुश्मनी को मोहब्बत में बदलना ही नहीं चाहता। तुम्हारी मुंह दिखाई और सरदारनी बनने पर उसे अपना आप कमतर लगा, इसलिए उसने वो कर दिखाया जो एक बाज़मीर इंसान कभी ना करता। निहाल शाह के जवाब पर मिरहा दोबारा कोई सवाल ना कर पाई। तुम्हारे खून का प्यासा वो शख्स तुम्हारी हवेली में भी पहुंच गया था। इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करता मैं वहां पहुंच गया और वो पकड़ा गया। निहाल शाह ने सारी बात का खुलासा किया तो मिरहा ने उसको मुल्तजी नजरों से देखा। क्या आप हमारे भैया को मार देंगे? इस सवाल का मकसद निहाल शाह की बार उसके करीब आया, जबकि लहजा अब भी सर्द था। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। क्या आप उन्हें सुधरने का एक मौका नहीं दे सकते? उन्हें माफ। निहाल ने उसके लबों पर हाथ रखा। जिंदा है वो और अपने सारे जुर्म कबूल भी कर चुका है जो उसने सुल्तान के उकसाने पर किया। निहाल शाह ने उसके पास बैठते उसे अपने सीने से लगाया। आप उन्हें माफ कर देंगे? उम्मीद से पूछा। ये उसके गले लगाने का ही नतीजा था जो वो इतनी हिम्मत करते उससे इतनी बड़ी बात कर गई। तुम चाहती हो कि मैं उसे माफ कर दूं? उसकी आंखों में झांकते पूछा था। वो इस बार बिना लब खोले इस बात में सर हिला गई। निहाल शाह ने गहरा सांस भरा। यार बहुत नरम दिल हो, एक शर्त है मेरी। वो उसको मजीद अपने साथ लगाते उसकी कमर पर बेबाकी से हाथ चलाता सटपटाने पर मजबूर कर गया। कैसी शर्त? तुमने वो कुछ कहा था ना कैद खाने में, ये छू लें, हक ले लें, जैसे मर्जी, चाहे जो मर्जी कर लें, उफ तक नहीं करूंगी, ऐसा कुछ कहा था ना तुमने? निहाल शाह के याद करवाने पर वो शर्म से सर झुकाती उसके सीने से लगी।
جبکہ نہال شاہ اسے اپنے ساتھ لگائے آسودگی سے آنکھیں موند گئی۔ پوری سیکیورٹی میں وہ مرہا کو اس کی باپ کی قبر پر لے گیا تھا۔ وہ مکمل نقاب میں تھی۔ اس کے بعد وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر خود دادا جان کی قبر پر بھی فاتحہ خوانی کر کے آتا۔ گاڑی میں بیٹھا، آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ اس کے اتنے جاہو جلال کو دیکھتے مرہا نے اس پر رش کیا۔ نہال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بے حد خوبصورت مرد تھا، جو نہ صرف خود خوبصورت تھا بلکہ اس کا من بھی خوبصورت تھا، اور وہ خوش تھی کہ اسے اتنا پیارا شخص ملا۔